sense. What we are going to discuss in the first podcast is pharmaceutical care, and that is basically patient oriented drug therapy, and it's something that we see being implemented in a lot of developed countries, but we see that a lot of developing countries like Pakistan is still falling behind, and we are going to discuss the situation of pharmaceutical care currently in Pakistan and what we can do, what the pharmacist community or what the experts from the field can do to make the situation better and actually implement pharmaceutical care in the country. So to discuss the topic, we have our honorable guest with us, Dr. Safir Khan, who is a passionate academic. He has been in community pharmacy he has years of experience in community pharmacy. So before we dig into pharmaceutical care in specific, I would like to ask you how clinical pharmacy as a profession is different from other conventional fields of pharmacy. First of all, thank you very much for inviting me. Basically, the conventional pharmaceutical sciences, which most of the people think that it's community pharmacy, hospital pharmacy, or forensic pharmacy, they are very much different from that of clinical pharmacy. The main difference is that the conventional pharmaceutical sciences are basically centered on drug-oriented services. If you take any type of conventional pharmaceutical science, for example, industry pharmacy or community pharmacy, it's only drug-centered. While in case of clinical pharmacy, you have to center on the drug therapy, or in simple sense, you have to center on the patient. So the main difference between these two sciences is that one is centered on the drug, while the other is centered on the patient. And secondly, in clinical pharmacy, you are authorized to make changes in the patient therapy for optimization or rationalization. These changes can be minor or major. If you are going to have a major change, then you have to consult your prescriber. But being a clinical pharmacist, if you are going to have some minor changes, for example, if you have identified any drug interaction or you want to change the timing of the drug, then you can do it by your own self. So at the end, the main focus or the main goal of clinical pharmacy services is to optimize therapy. Okay, so a lot of the pharmacists here in Pakistan, they have this mindset कि clinical pharmacy यहाँ पे बहुत practical नहीं है पाकिस्तान में. So what are your thoughts on that? बेसिकली जो पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट हैं या हमारे जो प्रोफेशनल्स भी हैं, वो ये सोचते हैं कि आपका जब तक एक एस्टेब्लिश्ड क्लिनिकल फार्मेसी का डिपार्टमेंट नहीं होगा हॉस्पिटल में, तो आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते. अगर इस सोच से हट जाएं तो फिर उनको एक चीज़ की समझ आएगी कि क्लिनिकल फार्मेसी ज़रूरी नहीं है कि आपका एक एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट हो तो तभी आप क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज दे सकते हैं. आप पेशेंट की थेरेपी में चेंजेस या पेशेंट की थेरेपी को ऑप्टिमाइज़ कम्युनिटी फार्मेसी में रहकर भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में रहकर भी कर सकते हैं. आप जीरियाट्रिक सेंटर्स में आप अपने घर में अगर आपके कोई क्रोनिक पेशेंट है जिसको सालों साल से कोई ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है या ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की गई है, तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे फार्मासिस्ट ये सोचते हैं कि जब तक आपके पास एक एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट नहीं होगा विद इन द हॉस्पिटल, तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज यूजलेस हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. आप किसी भी जगह पे रहकर, किसी भी सेटअप में रहकर आप पेशेंट ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे आपने बताया फार्मास्यूटिकल केयर का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग अस, वी आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और हमें भी नहीं पता था कि फार्मास्यूटिकल केयर आप लाइक आउट ऑफ द वार्ड भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि पीपल हु आर विलिंग टू वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसीज या उन्होंने अपनी कम्युनिटी फार्मेसीज खोलनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी फार्मेसी जितने भी फार्मासिस्ट हैं और जब हमारी पॉपुलेशन है उनको पता है कि यू कैन बी मोर इन्वॉल्व विद द पेशेंट. क्योंकि हमें ना शुरू से बड़ा डिस्करेज किया जाता है. लाइक हम 5 साल हमें भी हो गए, तो हमें हमेशा कहा जाता था कि अच्छा आपका तो काम नहीं है पेशेंट्स के साथ, है ना, आपने तो बस दवाई देना, आप तो कंपाउंडर, अजीब अजीब आप नाम सुनते हो. तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम हमें समझ आए कि हमारे रोल्स क्या हैं. तो उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ एज फार्मासिस्ट हम ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं पेशेंट में, नॉट जस्ट इन द सेटिंग ऑफ अ हॉस्पिटल बट बाहर भी, लाइक इन अ कम्युनिटी फार्मेसी. और बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल केयर जब भी हमारे जहन में आता है स्टूडेंट्स, तो वो डायरेक्ट उसको प्रिस्क्रिप्शन की तरफ ले जाते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब द ड्रग्स. आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो फार्मास्यूटिकल केयर में रहकर प्रोवाइड की जा सकती हैं. सबसे पहले तो मैं फार्मास्यूटिकल केयर को डिफाइन करूँगा कि फार्मास्यूटिकल केयर इट इज़ अ प्योर रोल इन अ क्लिनिकल फार्मेसी. क्लिनिकल फार्मेसी का एक मेन रोल है जिसमें आपकी इंडिविजुअलाइज फार्मासिस्ट इंडिविजुअलाइज पेशेंट को केयर करता है. And the main goal of to provide a pharmaceutical care is to identify a drug related problem and to resolve it.
means you are first going to identify a problem, but that problem should be drug related, because you are a pharmacist, you are the experts of drugs only, and second you have to resolve it. So basically जब हम ड्रग्स की तरफ अपनी बात को लेके जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अलावा, तो हमारे काफ़ी सारे रोल्स हैं। आपका अब यही रोल जो आपने बात की है, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को एक वार्ड के अंदर ही, एक हॉस्पिटल के अंदर ही रहकर ही आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई करें। आप अपने घर में रहकर भी, कम्युनिटी फार्मेसीज में भी, हॉस्पिटल फार्म, जो मैंने पहले बात की, किसी भी सेटअप में रहकर आप ये रोल कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास एक एस्टेब्लिश क्लिनिकल फार्मेसी का डिपार्टमेंट हो, एक एस्टेब्लिश आपके पास एक उसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, तो क्वालिटी ऑफ केयर पे लाजमन इफेक्ट पड़ता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट नहीं है तो आप क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। एट द एंड आपका यही गोल है कि आप पेशेंट की थेरेपी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, आप मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं अपनी थेरेपी से। वो ज़रूरी नहीं है कि आप वार्ड में ही दें, आप आउटसाइड द वार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Do you think कि हमारा जो फार्मेसी का करिकुलम है उसमें there should be a bigger chunk of pharmaceutical care, because we just touched the topic in clinical pharmacy, and that's maybe why a lot in our of last year है ना, graduating pharmacists, they don't have enough awareness and they don't think it's that important. So do you think we can modify our curriculum? You are absolutely right. Basically the problem is that as it's a newer field, so now I think in future inshallah there will be some modifications and you will see that a better curriculum. So मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन उसकी वजह भी है कि बाकी जो हमारे ओल्ड सब्जेक्ट्स हैं वो चूँकि एस्टेब्लिश्ड है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिक्स के हैं, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी में, तो इस वजह से वो एक एस्टेब्लिश होने की वजह से उनका करिकुलम काफ़ी वेल डिफाइंड है। लेकिन जब हम फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करते हैं और स्पेशली क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं, स्पेशली जो क्लिनिक, वो एक न्यूअर सब्जेक्ट है, तो उस वजह से अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 2013 में जो हमने कोर्स पढ़ा था, फिर उसको 2013 में थोड़ा मॉडिफाई किया गया, तो जो मैंने कोर्स पढ़ा क्लिनिकल फार्मेसी में, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और सर आप थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड आपने बताया था कि यू केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो आप वहाँ पे एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहे थे, एंड नाउ यू आर टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या पॉलिसीज में क्या चेंज है? हमारे पास पॉलिसीज और लॉज हैं, बट आई फील लाइक कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो हाउ डू यू थिंक वी कैन ब्रिज दैट गैप? इम्प्लीमेंटेशन में इतना व्हाई आर वी फॉलिंग बिहाइंड? बिल्कुल, एक बात तो आप, बिकॉज यू आर ग्रेजुएटिंग फार्मासिस्ट, तो आप कंपेयर करते हैं अभी के हालात के साथ, लेकिन जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं, हमसे भी सीनियर हैं, वो अपने हालात के साथ कंपेयर करते हैं। मैं सपोज 2013 का ग्रेजुएट हूँ, तो जब मैं उसके साथ आज की कंडीशंस को कंपेयर करता हूँ तो इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है। आई विल एग्री दैट इट्स अ स्लो इम्प्रूवमेंट, बट हालात ठीक हो रहे हैं। मतलब पहले कम्युनिटी फार्मेसीज पे फार्मेसिस्ट खुद नहीं बैठते थे, लेकिन अभी वो कहते हैं कि हमें बैठना चाहिए, तो हालात हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्लो चेंजेस आ रही हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि लॉज तो हैं, मतलब आप इसमें सिर्फ कम्युनिटी को, सिर्फ आपके जो रेगुलेटरी ऑफिसर्स हैं या उनको नहीं कह सकते, इसमें हमारा अपना रोल भी है। आपको कोई भी नहीं कहता कि आप जाके फार्मेसी पे मत बैठें। अगर आप फार्मेसी एज अ फार्मल कम्युनिटी में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको वेलकम किया जाएगा, बिकॉज एक ऐसी फील्ड है, ओपन फील्ड है, जहाँ पे अभी तक फार्मासिस्ट इन नहीं हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने आप को एंटर करना पड़ेगा, अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, लोगों में हम जाएंगे तो अवेयरनेस आएगी, उसके बाद हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो इसमें ज़्यादा कसूर ठीक है रेगुलेटरी ऑफिसर्स का भी, आप कह सकते हैं कम्युनिटी अवेयर भी नहीं है, बट एट द एंड जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा टाइम के साथ साथ अब हम फार्मेसिस्ट में भी ये आ रही है कि पहले लोग इंडस्ट्रीज़ में जाते थे, अब इंडस्ट्रीज से हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में आ रहे हैं लोग, कम्युनिटी फार्मेसीज़ में जॉब्स कर रहे हैं, न्यूक्लियर फार्मेसीज़ में जॉब्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी मल्टीपल किस्म की जॉब्स हैं, मार्केटिंग में हमारे फार्मासिस्ट इंटर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और आखिरी बस आपसे हम यही सवाल पूछना चाहेंगे कि हम लोग खुद ग्रेजुएट हो रहे हैं कुछ अरसे में, और आपकी एडवाइस क्या है जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टडिंग राइट नाउ, एंड फॉर अस स्पेसिफिकली द बैच हु इज ग्रेजुएटिंग, कि आप क्या कहना चाहेंगे? Graduating students and we feel like there is a sense of anxiety and uncertainty. They're not sure कि आगे जाके क्या होगा, what opportunities they have, and you know there is a general idea कि यहाँ पे पाकिस्तान में field of pharmacy is still not very defined, or people don't know what they're going to do after graduating. So what do you think they can do to make that process easy for themselves? इसी के साथ मैं आपको एक और रिलेशन में और आपको बात बताना चाहूँगा। इसी के साथ बेसिकली आप सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी
कम्युनिटी को देखते हैं या पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं और बाकी आगे निकल चुके हैं। मैं क्लिनिकल फार्मेसी की आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि आपका टॉपिक भी वही है फार्मास्यूटिकल केयर, कि जब हम सऊदी के बारे में लोगों के ये ख्याल आते हैं फार्मासिस्ट के जो वहाँ नहीं गए, तो वहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी एक बड़ा एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में और क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की मल्टीपल किस्म की जॉब्स आती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी अभी तक ये वीक फुटिंग्स पे ही है। वहाँ पे 90 to 95% जो हमारे फार्मेसिस्ट जॉब्स करते हैं वो इधर कम्युनिटी फार्मेसीज़ में करते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में। लेकिन यहाँ पे एक लोगों में मिथ है कि नहीं, क्लिनिकल फार्मेसी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं है बल्कि बाकी ममालिक में काफ़ी इस्टेब्लिश है। लेकिन एट द एंड फिर मैं ये क्लेरिफाई करूँगा कि क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट हो, एक ऑफिस हो, वार्ड हो, आपके पास एक मॉनिटरिंग का सेटअप हो, तो आप तब ही प्रोवाइड कर सकते हैं। If you are working as a community pharmacist and you are recommending to some multivitamins, OTC products or some antidiarrheal agents or some medicines for constipation, so it means you are, in that case, you are acting as a clinical pharmacist. So clinical pharmacist can be a hospital pharmacist, he can be a community pharmacist, he can be any other type of pharmacist. अगर आप घर में हैं और घर में फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्रोनिक पेशेंट है और थायरक्सिन की टैबलेट खाने के बाद लिए जा रहे हैं और आप उनको काउंसिल करते हैं कि ये थायरक्सिन की टैबलेट खाने से पहले खाएं, 30 मिनट इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इट मीन्स कि उस टाइम पे आपने उसको क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड की। तो जब हम इसको स्टिक कर जाते हैं तो फिर हमें यह लगता है कि कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जब हम उसको एक बड़े रेंज में देखते हैं तो फिर इसका काफ़ी है। बाकी जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हमें जो ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक के लिए डिफरेंट है। मतलब आपके लिए जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में है या जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं फ्यूचर में वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मैं जो करना चाह रहा हूँ या आपके साथ जो बाकी ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट है। आप एक एडवाइस को सब पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जो आगे प्लान करने जा रहे हैं या आप अपने ऑप्शन देखने जा रहे हैं उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक अपने इंटरेस्ट का और एक अपने सर्कमस्टांसेस का। मतलब आपके हालात आपको किस प्रोफेशन को फेवर कर रहे हैं फार्मेसी में, और दूसरा आपके अपने इंटरेस्ट क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा ग्रेजुएट फार्मासिस्ट है और वो कम्युनिटी फार्मेसी में इंटरेस्ट है उसका और साथ में उसका फैमिली बिजनेस भी है कम्युनिटी फार्मेसी में, तो मेरे हिसाब से तो उसको फिर कोई और फील्ड चूज़ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जब वो अपनी फैमिली बिजनेस को रन करेगा तो वो अपने लिए भी कुछ अर्न करेगा और जिस तरह से वो उसको चलाएगा वो कम्युनिटी फार्मेसी को, वो उस तरह से उसकी फैमिली नहीं चला सकती। तो मैं इसलिए कहूँगा कि हर स्टूडेंट के लिए या हर हमारे जो ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट हैं उनके हालात भी डिफरेंट होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। उनको अपना ये प्लान बनाना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पे मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। Do you think कि हमें सारी फील्ड्स का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए so that we know कि where we fit best? यस, अगर आप क्लैरिफाइड हैं, इफ़ यू आर क्लैरिफाई अबाउट योर गोल्स देन आई डोंट थिंक सो कि आपको डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहिए। बट इफ़ यू आर मतलब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि किस फील्ड में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड किस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं, देन इट्स बेटर to keep 2 to 3 years in your mind and then decide your future. And It's up to you. If someone has like a vision कि अगले 10 साल में for example community pharmacy खोलें, because it's not an easy thing, लेकिन बहुत सारे हमारे students हैं जो सबके they share the same goal, तो आप उनको क्या कहेंगे कि they should start working in a community pharmacy? Yes, if he has a plan to because that's their ultimate goal. Yes, ultimate goal. But at the end I would say that कि आपको टाइम लिमिट नहीं देना चाहिए। by having a time limit you are just increasing Putting your yourself in the anxiety. pressure. You are making depression. So because ऐसा भी हो सकता है कि you can achieve your goal within 1 to 2 years, और ऐसा भी हो सकता है कि after 15 years को भी आपको गोल अचीव ना हो। तो आप जब अपने आप को एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि within that specific time I have to मीन्स मुझे कम्युनिटी फार्मेसी में जाना है या वो जाना है, तो वो आप बेसिकली अपना आप का नुकसान कर रहे होते हैं। एंजाइटी में जाते हैं आप, डिप्रेशन में जाते हैं, अपने आप को इफेक्ट करते हैं। अपने गोल सेट करें, टाइम लिमिट उसके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसको आप सिर्फ यही कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं और वो एट द एंड आप रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स की फ़िक्र आप छोड़ें, आप सिर्फ जो है अपने फील्ड को चूज़ करें और इसमें एंटर हों बजाय टाइम लिमिट सेट करने के। Okay, so that was a very informative session by our honorable guest, and I hope as much as we learned, I hope कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा।